Hello students, hope you all are fine. Let's move towards our very first chapter of microeconomics, that is economics and economy. In the last in the last tutorial I gave you the definition of economics, and today we are explaining what the basic concepts are coming in this chapter. Here in chapter economics and economy, the next topic is microeconomics and macroeconomics. Economics is divided in two parts. One part is micro and other part is macro. One part is micro and other part is macro. In plus 1 class you will read microeconomics, and in plus 2 class you will read macroeconomics. Here is a huge difference between micro and macroeconomics, that is microeconomics, which deals with individual. The basic concept of microeconomics is microeconomics deals with individuals, whereas macroeconomics deals with whole. Whole means to say the whole economy. Whole means to say the all producers, all production sector. In microeconomics, if we are talking about an individual producer, but in macroeconomics we will talk about the whole production sector. कौन कौन से लोग प्रोडक्शन करते हैं. So basis of study, if we are talking about in micro we are talking about one consumer, and in macroeconomics we will talk about household sector, all the persons, those who do the consumptions. In microeconomics we always take the assumptions that all the things are constant. No change in fashion, no change in taste, no change in customs, all the things remains same. But in macroeconomics, no such type of assumption is required. We will take all the things are continuously changing. The third is degree of aggregations. Microeconomics deals with individual demand, individual consumption, individual firms produce profits. But in macroeconomics we are talking about aggregate demand which is made by all the consumption sector of the economy. Aggregate supply, which is made by the supply of all the producers in an economy. Next, theories. In microeconomics we always determine prices, price of commodities. कौन सी चीज़ किस कीमत पे मार्केट में जाएगी, कौन सी मार्केट में लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा. यहाँ पे इतने डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते जाएंगे तो बीच में हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ कैसे आनी है. सो अगर हम यहाँ पे इतने डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे. इसलिए बेटर इज़ के यू जस्ट टेक द थ्योरीज. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी. ऑन द अदर हैंड, if we are talking about macroeconomics, it deals with the level of income and employment in an economy. At what level of income and employment economy will be on the equilibrium position. equilibrium बेटा एक बेसिक टर्म है जो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में आनी जरूरी है. equilibrium means to say is the position where a consumer or a producer they felt themselves in a very good condition. दैट मीन्स टू से कंज्यूमर, आप लोगों ने खाना खाना है, जहाँ पे जाके आप लोगों का पेट पूरा भर जाए, जहाँ पे आपको लगेगा इससे ज़्यादा खाना आपके लिए नुकसानदायक है, इससे कम खाना आपके लिए नुकसानदायक है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ प्रोड्यूसर, दैट इज़ द लेवल वेयर प्रोड्यूसर इज एबल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स by paying minimum price, minimum cost, right? So in microeconomics we always take the theories of price determinations. On the other hand, in macroeconomics we always take the theories which shows at what level of income and employment economy will be on the equilibrium position. So these are the differences between micro and macroeconomics. And if we are going on the next topic, that is related to nature of economics. Economics, nature means to say, we will say that whether it is an art or a science.
साइंस आप लोगों ने 10th तक पढ़ी है। साइंस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइंस विच टेल्स अस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किस चीज़ से क्या इफेक्ट, रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं। H2O वाटर, हाइड्रोजन 2 हिस्से, ऑक्सीजन का 1 हिस्सा विल बी इक्वल टू वाटर। द सेम इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस विच डील्स विद मैनी प्रॉब्लम्स। जैसे आपको कोई बेटा काम करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कोई भी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, देन यू हैव टू क्लासीफाई दैट डाटा, then you will analyze that data, analyzation of the data. Afterwards, you will solve the problem. Then finally, you will make conclusions related to that problem. So that means to say that is science. Now science or economics, that is divided in two parts. One part is positive economics and other part is the normative economics. Now what comes in positive economics? Positive economics is related to पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब भी बेटा देखो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप लोग क्या करते हो, पहले तो ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में ये चीज़ ऐसे होगी। द सेम इज हियर। सपोज अनएम्प्लॉयमेंट इन पास्ट ईयर्स वाज लाइक दिस, नाउ दिस मच इज द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अगर ऐसा ही चलता रहा इन फ्यूचर this much will be the amount of unemployment in the economy. So this is related to positive economics. Positive economics which is based on the facts and figures. बेटा हमने जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है कितनी। जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो प्रॉब्लम है कितनी तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एट प्रेजेंट, and what the problem will be in the future. Totally it is based on the facts and figures, and definitely it shows the definity of the things also, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के रिलेटेड डाटास कलेक्ट करते हैं तो उस चीज़ में डेफिनेटली आ जाती है कि यस ये बिल्कुल सही है। On the other hand, if we are talking about normative sense, it is related to what ought to be. What ought to be मतलब कि उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है। इट टेल्स अस द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव सेंस, इट इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव पार्ट हमें ये बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या थी और क्या होगी, बट it never tells us the solution of the problem. That means to say how we can solve the problem. But in normative economics, it tells us the solution of the problem. That means to say what ought to be. Suppose यहाँ पे हमने ये देखा कि इकोनॉमी में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी ये पोजीशन चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो इन फ्यूचर दिस विल बी देयर इन द इकोनॉमी। पर इनमें ये नहीं बताया गया कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। But in normative economics, we always give the solution of the problem. For example, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जब हमें पता चला, जैसे महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, नरेगा स्कीम इज द solution for the solution of the problem of unemployment and poverty. So normative sense will tell us the solution of the problem. Now we are talking about difference between positive and normative economics. In it, very first point is facts and figures. As we say that the positive economics is purely based on facts and figures, means to say we have to collect the data, on the basis of that we can make analysis that the thing is happening or not happening. But in normative economics, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी ओपिनियंस देते हैं। इन दीज ओपिनियंस जब हम बोलते हैं व्हाट आउट टू बी, नेचुरली एवरीवन विल गिव हिज ऑन व्यूज, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना। तो इट मीन्स इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स,
but it is based on opinions, जिसमें क्या करते हैं बेटे, आप अपनी ओपिनियंस देते हो कि यस हमें इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं. द सेकंड थिंग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने अपना काम कर दिया कि उसने बता दिया कि भाई इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ऐसे होगी. बट जब ओपिनियंस आएंगी तो इट मीन्स एवरी वन विल गिव हिज ऑन वैल्यू जजमेंट. सो इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, right? Everyone will give their own opinions on judgments. On the basis of that we can come to know that whether this is okay or this is wrong. In positive sense, this is verifiable. Why this is verifiable? जब हमने बेटा डाटा कलेक्ट किया है तो नेचुरली हम डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जैसे हमने जो फिगर्स कलेक्ट किए हैं वेदर दोज फिगर्स आर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. बट in normative economics this is not verifiable because everyone is giving their own views, तो उनकी views को हम verify नहीं कर सकते. So that's why this is verifiable but this is not verifiable. Exactly देखा जाए तो positive and normative दोनों तरह की साइंस जो है, दोनों तरह की इकोनॉमिक्स जो है, that is helpful for the solution of problems in an economy. तो जब भी बेटा इकोनॉमिस्ट कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो इन दोनों सेंस को यूज़ करते हैं. तीसरी है भी है हमारे पास, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है. आर्ट जिसमें मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं व्हाट द प्रॉब्लम इज़, व्हाई द प्रॉब्लम इज़ एंड व्हाट द प्रॉब्लम विल बी. यहाँ पे हम देखते हैं हाउ व्हाट ऑट टू बी, ये है सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बट उसमें हम लोग प्रैक्टिकली उस सोल्यूशन को करते हैं, राइट. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दोनों ही हैं. Now we are coming on the next topic, that is nature and level of the economy. Nature means to say what type of the economy that is, what type of the activities are going on there, whether the activities are industries based or activities are agriculture based. For example, if we are talking about इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी के लोग तो 70 से लेके 50 to 70% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है. तो नेचर, अगर हम चाइना वगैरह इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम वर्क्स जो हैं दैट आर इंडस्ट्रीज बेस्ड. सो दिस मीन्स टू से नेचर ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स टू से व्हाट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन ओवर देयर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स टू से at what level the economy is, whether that is well developed economy, underdeveloped economy, या developing economy. Like Indian economy is developing economy, so we have to talk about the level of the economy कि वहाँ पे काम कैसा चल रहा है, सब ठीक है या there is a need for the improvement. Types of an economy. इकोनॉमी बेटे हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी है. The very first is centrally planned economy, free economy and mixed economy. Centrally planned economy where all the maximum works are done by central authorities, that is government. This type of the economy is purely controlled by the government. जहाँ पे जितने भी डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बेटे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी है. क्योंकि जब भी किसी इकोनॉमी में कोई भी काम करना होता है तो वहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हमने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कितना काम करना है, किस चीज़ की प्रोडक्शन कितनी करनी है, ठीक है. दिस ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटीज बाय यूजिंग द वेल प्लान्ड वे इन एन इकोनॉमी. यहाँ पे जो भी काम होता है वहाँ पे बेटे कंज्यूमर सोवर्निटी नहीं देखी जाती. व्हाट इज आस्क्ड बाय कंज्यूमर, दे विल नॉट प्रोड्यूस दोज गुड्स, they will produce only those goods which are highly required in an economy for the public welfare. The main motive in central planned economy is public welfare, जहाँ पे सेल्फ मोटिव के लिए कोई काम नहीं होता, कॉमन मोटिव के लिए काम होता है जिसमें कि पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर हो, ठीक है. If we are talking about a free economy is that type of the economy where all the major decisions related to what to produce, how to produce, for whom to produce, these all major decisions are taken by private sector.
market authorities on the basis of market forces. Market forces means to say two major market forces are there. One is demand and other is supply. क्योंकि मार्केट बेटे इन दोनों के ऊपर चलती है, किस चीज़ की कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है. डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन की जाए तो प्रोड्यूसर विल बी ऑन द प्रॉफिट लेवल. सो इन फ्री इकोनॉमी, as I said that here is the control of market authorities, free authorities, market forces, demand and supply. So whatever is produced in the market, that is purely based on the demand. Here is the consumer sovereignty. Whatever is asked by consumer, the producer will produce only those goods. अगर कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उसकी सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, किसी चीज़ की डिमांड कम है तो उसकी सप्लाई कम की जाएगी. बिकॉज इन दिस मार्केट द मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स इज देयर ऑन प्रॉफिट. They will produce only those goods which are highly demanded in the market, and they always try to get maximum profits by paying minimum cost. यहाँ पे अगर प्रोडक्शन की कुछ बाउंडेशंस हैं कि इस चीज़ की प्रोडक्शन इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो यहाँ पे ये बाउंडेशंस टोटली ख़त्म है. क्योंकि इसमें चाहे कोई चीज़ कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, दैट डजेंट मैटर. वो सिर्फ उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड है. तभी तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट मोटिव. एंड नाउ here in mixed economy there is a combination of a centrally planned economy and free economy. That is why it is known as a mixed economy, because here public sector as well as private sector both will go side by side. Some specific works are controlled by central authorities and some specific works are controlled by private sector. As in our Indian economy, इन अवर इंडियन इकॉनमी पहले तो बेटा बहुत सारे, मतलब कि ये कह लो ले लो कि 17 मेन इंडस्ट्रीज, बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जो थी वर अंडर द पब्लिक सेक्टर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. और बाकी के काम जो थे वो मिक्स्ड भी थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते थे, और बहुत से काम ऐसे थे जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही करता था. ठीक है. बट अब गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट के जो वर्क्स हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं. कम होके इस टाइम पे जस्ट गवर्नमेंट इज़ हैविंग 2 वर्क्स, दैट इज़ एटॉमिक डिफेंस एंड रेलवेज. बाकी सारे काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा चुके हैं. सो इस तरीके से बेटे मिक्स्ड इकॉनमी, हमारी इंडियन इकॉनमी इज़ मिक्स्ड इकॉनमी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इज़ डूइंग द वर्क जस्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ डूइंग द वर्क जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट कम है, क्योंकि कंज्यूमर्स अपने हिसाब से चीज़ को नहीं खरीद सकते. बट इन फ्री इकॉनमी कंज्यूमर्स आर फ्री टू परचेज एनी कमोडिटी. ठीक है. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उनके हिसाब से प्रोडक्शंस करते हैं. तो मिक्स्ड इकॉनमी इज मिक्सचर ऑफ दीज बोथ टाइप ऑफ द इकॉनमी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अवर इकॉनमी. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज यू कैन कम टू नो अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये बेटा हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक चैप्टर है. ये इसमें बहुत सी टर्मोलॉजीज ऐसी हैं जिसके हिसाब से आपको आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.